Okay, so I am just sharing a document. All of you please reconnect. Okay, so my voice is clear to all of you. Yes, sir. Okay, okay. Kindly reconnect again, so that I can finish the topic. Okay, so if we find the efficiency of the pure aloha, clear, we are just calculating it. So again, we are having eta is equal to g into e की power minus 2g, what I have told you. Clear? This is the natural efficiency of pure aloha. Now if we find the maximum efficiency of pure aloha, so how we can calculate the maximum efficiency of pure aloha. Clear? So we just derivate it with respect to the variable term, that is d eta p upon dz. So what you can go at, how can you calculate the maximum efficiency? If you derivate is with respect to dz, there are two terms, clear, first term and second term. So can anyone explain how can we calculate the derivative? Hello, can anyone explain? We are having two terms, clear, g into e की power minus 2g. So if we calculate it with respect to g, then how we can calculate, कोई बताएगा? सर डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट सर टर्म, प्रोडक्ट है। हाँ, तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक टर्म को फर्स्ट ले सकते हैं, दूसरे को सेकंड ले सकते हैं। तो सपोज मैं इसको फर्स्ट ले लेता हूँ, सेकंड ले लेता हूँ। सपोज वी आर हैविंग these two terms and this is first, this is second. So what we can do, first term into differentiation of second, तो g into differentiation of second, इसका करेंगे तो e की पावर माइनस 2g का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, g into, एक तो आपका माइनस 2g का डिफरेंशिएशन होगा, तो माइनस 2g का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, it will give you माइनस 2, सो माइनस 2, ठीक, और e की पावर माइनस 2g, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, तो e की पावर माइनस 2g, क्लियर, प्लस e की पावर माइनस 2g, e की पावर माइनस 2g, g का हमारा डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। नाउ इफ वी कैलकुलेट, आप e की पावर माइनस 2g अगर कॉमन लेंगे तो e की पावर माइनस 2g, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2g, क्लियर। नाउ हेलो, किसी ने YouTube की वीडियो ऑन कर रखी है, काइंडली म्यूट दैट। हेलो, आप में से किसी ने YouTube की वीडियो चला रखी है, जरा इसको म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, सो we are having these two. So this is the differentiation. Now if we find the maximum efficiency, so we need to put it what, इसको हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो हमने डिफरेंशिएशन निकाला है, इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो ये वाला टर्म हमारे पास आया है कॉमन टर्म, ये इतना पोर्शन, इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे। तो अगर 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस 2g बराबर 0, मीन्स g इज इक्वल टू 1/2। g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, ये तो 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 2g बराबर 0, तो g इज इक्वल टू 1/2। इज इट क्लियर? 1 माइनस 2g इज इक्वल टू 0, मीन्स g इज इक्वल टू 1/2। ठीक, तो ये हमारे पास जो टर्म आ गया, g इज इक्वल टू 1/2, ये सभी को दिख रहा होगा आई थिंक।
यस सर। G इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब इसको अगर हम जो नेचुरल हमारे पास एफिशिएंसी थी प्योर एलोहा की उसमें पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगी। मींस अगर हम G की वैल्यू 1/2 इसमें पुट करेंगे तो वी विल गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ प्योर एलोहा। क्लियर? सो we just put this value into this eta p term. So can I erase this? इसको erase कर दूं मैं? यस सर। Okay, so okay. So if we put this G is equal to 1/2, which we have find from the derivative term and make it to 0. और अगर मैं इसको अब 1/2 मैं यहाँ पुट करता हूँ, so what will get eta p eta p, that is maximum efficiency. So if we can find the maximum, we can denote it as maximum. If you put G is equal to 1/2, which we have find, so e की power -2 into 1/2. So your 2 and 2 is cancelled. Clear? So you will get what? 1/2 e की power -1. And what is the value of e की power -1? If you someone have the calculator, then please calculate it. Okay, e की power -1. What will get? What will be the result? If someone have calculator, kindly tell. 0.36. 0.3678. Okay, 0.3678. Okay, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, then what will be the result? Around 0.18, 0.183 something है ना, 0.183 समथिंग। तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है प्योर एलोहा की वो कितनी आ रही है? 0.18। इसका क्या मतलब है? 0.18 आएगी ना? यस सर। 0.18 समथिंग। क्लियर? तो इसका क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है कि अगर मैं इसको परसेंटेज में देखूं, दैट इज 18% अराउंड। क्लियर? इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं देखूं तो हमारा जो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो रहा है, एफिशिएंसी का मतलब क्या? आउटपुट अपॉन इनपुट, मींस व्हाटएवर इनपुट वी आर गिविंग, according to that what are the outputs we are getting. Clear? तो इसका मतलब ये है कि हम इनपुट जो दे रहे हैं वो सक्सेसफुली केवल 18% ही हमारा ट्रांसमिट हो पा रहा है चैनल के थ्रू। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि प्योर एलोहा में हमारा 100% एफिशिएंसी, अगर हम देखें 100% एफिशिएंसी कंसीडर करके चलें तो 100% में से केवल 18% ही हमारा पैकेट है जो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो पा रहा है ऑन एवरेज। क्लियर? दिस इज द मीनिंग ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ प्योर एलोहा। ये समझ में आ गया सभी को? 0.18 समथिंग आ गया। तो ये हमारी थ्रूपुट है, इसी को थ्रूपुट बोलते हैं। हेलो, दिस इज कॉल्ड द थ्रूपुट। यस सर। अच्छा, हाँ, अच्छा, जी हाफ हमारा क्यों आ रहा है? जी हाफ आने का एक लॉजिक भी है। जी हाफ इसलिए आ रहा है कि आप देख सकते हो कि हमारे हमारा जो पैकेट है वो ज्यादातर पैकेट क्या हो रहा है प्योर एलोहा में कि जैसे मान लीजिए पैकेट ए है, पैकेट बी है, पैकेट सी है, तो पैकेट ए का हाफ पोर्शन पैकेट बी के हाफ पोर्शन से टकरा रहा है, या पैकेट सी का हाफ पोर्शन पैकेट ए के हाफ पोर्शन से टकरा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है ना? तो इसलिए हमारी जो पैकेट का कोलिजन है, फ्रेम पैकेट एक तरह से कह सकते हैं कि फ्रेम ड्यूरेशन है, वहां पे फ्रेम ड्यूरेशन हमारा ट्वाइस ऑफ TFR आ रहा था जो वन रिलेबल टाइम है। तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब हाफ द पैकेट्स हमारे, ज्यादातर हमारे हाफ पैकेट्स जो हैं वो कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्योर एलोहा में, मतलब हाफ पोर्शन ऑफ द पैकेट गेट्स करप्टेड। क्लियर? सो इसीलिए ये जो जी हमारा निकल के आ रहा है ना, ये जी की वैल्यू 1/2 आ रही है। और आप देखिएगा जो स्लॉटेड लोहा है उसमें जी की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि अगर हमारा कोई पैकेट कोलाइड कर रहा है तो वो कंप्लीट का कंप्लीट पैकेट कोलाइड कर जाता है मोस्ट ऑफ द थिंग। अगर मान लीजिए एक ही स्लॉट में दो से ज्यादा स्टेशंस के पैकेट आ गए
तो वो एट ए टाइम कोलाइड करेंगे तो कंप्लीट कोलाइड करेंगे, तो इसीलिए जी हमारा 1 हो जाता है, क्योंकि जो पैकेट कंप्लीट पैकेट हमारा कोलाइड करता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे उसको भी हम लोग निकाल के देखेंगे। तो ये हमारी मैक्सिमम थ्रूपुट आ गई प्योर एलोहा के लिए। अब अगर मैं बात करूं स्लॉटेड एलोहा के लिए, तो स्लॉटेड एलोहा में क्या होगा, ये आपका डेरिवेशन पूछा जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। ठीक है ना, आपसे डेरिवेशन ये पूछा जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्योर एलोहा में क्या होगा, सॉरी स्लॉटेड एलोहा में क्या होगा, यही जो एफिशिएंसी है ये -2 की जगह पे -g रह जाएगी। ठीक है, -2 की जगह पे -g रह जाएगी इन केस ऑफ व्हाट, स्लॉटेड एलोहा। ठीक है, तो स्लॉटेड एलोहा में ये जो एफिशिएंसी है ये केवल -g रह जाएगी, -2g की जगह। क्यों -g रह जाएगी, क्योंकि जो वनरेलेबल टाइम हमारे पास था वो केवल TFR था, तो जो सिंगल TFR था, तो इसलिए जो हमारा पैकेट जो हमारी जी की वैल्यू होगी वो भी हमारी क्या रह जाएगी, सिंगल जी रहेगी। ठीक है, तो e की पावर -g, दिस इज द नेचुरल एफिशिएंसी ऑफ द स्लॉटेड एलोहा। नाउ इफ यू फाइंड अगेन द मैक्सिमम एफिशिएंसी, you just revise that particular portion in case of pure एलोहा। उसी को आपको फिर से करना पड़ेगा, वही सारा प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, again we can differentiate with respect to what, g। so what will get, again this is first, this is second term, तो g into the first term, तो second term का डेरिवेशन तो क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट माइनस डेरिवेटिव क्या आएगा सेकेंड टर्म का, -1 इंटू ई की पावर -g, ठीक, प्लस ई की पावर -g, क्योंकि g का 1 हो जाएगा। अब आप इसको कॉमन लेंगे तो आएगा ये e की पावर -g, अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, -g + 1। ठीक, अब हमें अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना है, अगर मान लीजिए इसको मैक्सिमम करना है हमको, इफ यू फाइंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो इसको 0 करना पड़ेगा। ठीक, तो 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये टर्म तो 0 आ जाएगा, -g + 1 is equal to 0 means g is equal to 1। so we are having g is equal to 1, so if we find the how much maximum efficiency is there, how much is the efficiency of the slotted एलोहा, तो इस g की वैल्यू हम उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो if you put this g value into the upper side equation, that is eta s is equal to g into e की power -g, then you will get what, इसको मैं अगर ऊपर रख दूंगा तो क्या मिलेगा हमको, बताइए। e की पावर -1। अगर मैं g की, हाँ, तो देखिए अगर मैं इस g की वैल्यू को ऊपर वाले टर्म में रख दूंगा तो हमको जो टर्म मिलेगा, देखिए ये मिल जाएगा, ईटा s इज इक्वल टू, g की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू ई की पावर -1, e की पावर -1 इज व्हाट, 0.36 समथिंग, यस सर, e की पावर -1 इज व्हाट, 0.36 समथिंग ना, बताइए। यस सर, यस तो सर, ये आ जाएगा आपका 0.36 समथिंग आ जाएगा। क्लियर, इज इट क्लियर। तो आप देखिए यस, एफिशिएंसी आपकी क्या हो रही है, जस्ट डबल हो जा रही है। एफिशिएंसी इज व्हाट, जस्ट डबल्ड, एफिशिएंसी डबल हो रही है ना। यस सर, वहां 18% के आसपास आ रही थी, यहाँ 36% हो गई। इसका मतलब क्या, अगर इसको परसेंट में निकालोगे, परसेंट एफिशिएंसी, तो दिस इज अराउंड 36%। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्लॉटेड लोहा है उसमें स्लॉट्स, टाइम स्लॉट्स हम चूंकि देते हैं हर एक स्टेशन के लिए या हर एक पैकेट के लिए, उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, एफिशिएंसी डबल हो जा रही है। तो जो 18% एफिशिएंसी थी वो 36% में कन्वर्ट हो जा रही है। तो वी आर गेटिंग सम इंक्रीज एफिशिएंसी। इसीलिए मैं आपको दिखा रहा था अभी, जो अभी आपको मैं बता रहा था कि जो, एक मिनट देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ,
ये देखिए थ्रूपुट दिख रहा है यहाँ पे, यू कैन सी देयर इज ए थ्रूपुट दिख रहा है ना, दिस इज Yes, sir. सिस्टम, ये जो दिख रहा है ना 0.368 वो इसी से आया है फॉर g इज इक्वल टू 1। और g इज इक्वल टू 1 भी आपको रटना नहीं है, आपको कोई चीज रटनी नहीं है यहाँ पे कि g इज इक्वल टू 1 क्यों रखा, वहाँ g इज इक्वल टू हाफ क्यों रखा। g इज इक्वल टू 1 इसलिए आया है कि जब हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें जब 0 के बराबर रखना है तो g1 आ रहा है ना, रटने की कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही वहां पे जब डिफरेंशिएट किया था प्योर एलोहा में तो g की वैल्यू 1/2 आई थी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको कोई Yes, चीज sir. रटना नहीं है। हाँ, ये पूरा का पूरा मतलब एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है। एफिशिएंसी या थ्रूपुट आपको समझ में आ गया? इसका थ्रूपुट 36.8% है। इसका मतलब है कि हमारा जो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो रहा है पैकेट का चैनल के थ्रू वो 36.8% है, मतलब उससे ज्यादा ही है, उससे जस्ट डबल हो गया। कहाँ 18% हमारे सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो रहे थे प्योर एलोहा में, कहाँ 36.8% हो गया सक्सेसफुल ट्रांसमिशन इन स्लॉटेड एलोहा। इज इट क्लियर? Yes, sir. किसी को प्योर एलोहा स्लॉटेड एलोहा में अभी एफिशिएंसी या उसके टर्म्स समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर जी इज द नंबर ऑफ स्टेशंस विश टू ट्रांसमिट इन द सेम टाइम, ठीक है। जी हमारा क्या है कि नंबर ऑफ स्टेशंस जो कि पैकेट को ट्रांसमिट करना चाहते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है, ये हमारा जी की वैल्यू है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज जी, तो जी इज द नंबर ऑफ स्टेशंस विश टू ट्रांसमिट इन द सेम टाइम, क्लियर, दिस इज द जी, क्लियर। जो पैकेट्स हमारा ट्रांसमिट हो रहा है सेम टाइम में वही जी है, ठीक है। एंड सो अब इसमें देखिए कंपैरिजन है, दिस इज द कंपैरिजन। आपसे अगर ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ या कंपेयर प्योर एलोहा विद द स्लॉटेड एलोहा, सो वी हैव द कंपैरिजन टेबल, क्लियर। इन प्योर एलोहा एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट द डेटा एट एनी टाइम, मैंने बताया ना ये रैंडमली होता है, इसमें कोई स्लॉट्स नहीं होते हैं, कोई स्टेशन किसी भी टाइम पे डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। जब जब भी उसको पैकेट मिलेगा वो तुरंत ट्रांसमिट कर देगा, तो कोलिजन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। स्लॉटेड एलोहा में क्या है, एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट द डेटा एट द बिगिनिंग ऑफ एनी टाइम स्लॉट, जब टाइम स्लॉट बिगिन हो रहा होगा तब हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है स्लॉटेड एलोहा में, सेकेंड पॉइंट है द टाइम इज कॉन्टिन्यूअस एंड नॉट ग्लोबली सिंक्रोनाइज। टाइम आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, कोई सिंक्रोनाइजेशन यूज नहीं होता है। सिंक्रोनाइजेशन नहीं होने की वजह से ही हमारा क्या है लॉसेस ऑफ पैकेट हैपेंस होते हैं। पैकेट का लॉस इसीलिए हैपन होता है क्योंकि टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। एंड इन दिस केस टाइम इज डिस्क्रीट एंड ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। अगर टाइम हमारा सिंक्रोनाइज है और टाइम डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट का मतलब जो स्लॉट्स बना रहे हैं उसको डिस्क्रीट टाइम स्लॉट बोलते हैं, उसकी वजह से लॉस ऑफ पैकेट्स कम होते हैं, होते तब भी हैं, तब भी टकरा जाता है पैकेट कहीं ना कहीं, लेकिन ये है लॉस ऑफ पैकेट्स फिर भी कम होते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज वनरेबल टाइम इन विच कोलिजन्स में अकर इज ट्वाइस ऑफ TFR। ये भी मैंने बताया ही था आपको, वनरेबल टाइम इसका प्योर एलोहा का ट्वाइस ऑफ TFR होता है, स्लॉटेड का TFR होता है, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पैकेट इज G into e की पावर -2G। ये जो G into e की पावर -2G है क्या है, ये एफिशिएंसी है, ठीक है, किसकी, प्योर एलोहा की। तो ये यही बताता है कि कितने पैकेट सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो रहे हैं, अभी हमने बताया ही था आपको। एंड इसके केस में क्या होता है, G into e की पावर -G होता है, G into e की पावर -G होता है। बाकी एफिशिएंसी हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो इसमें 18.4 आया और इसमें 36.8 आया। और जो लास्ट में है कि मेन एडवांटेज क्या है इसका, सिंपलिसिटी इन इम्प्लीमेंटेशन होता है प्योर एलोहा, इम्प्लीमेंट करना सिंपल होता है। और जो सेकेंड आपका है उसमें क्या है कि इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ कोलिजन्स टू हाफ एंड डबल्स द एफिशिएंसी ऑफ प्योर एलोहा। इज इट क्लियर? एलोहा सिस्टम क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हेलो, No, sir. No, sir. तो
ओके सो आगे हम लोग नेक्स्ट में CSMS CD पढ़ेंगे। CSMS मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस स्कीम पढ़ेंगे अगले लेक्चर से, ठीक है। तो अब फिलहाल मैं मेरी दूसरी क्लास भी है, तो मैं फिलहाल इसको एंड करता हूँ सेशन को, ठीक है। और आप लोग की अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। तो सर अभी तो उससे स्टार्ट हुआ है सर 7374 का। ये अभी कौन सी क्लास चल रही है? ये वाली जो क्लास है? अरे सर अभी 7172। हाँ तो ये 7172 है ना। 7374 तो अभी हमें स्टार्ट करना है 11 से 12, ठीक है। ओके सर 11 तो बज ही गया है। हाँ हाँ तो उसकी क्लास लेने जा रहे हैं अभी। तो ठीक है फिर, थैंक यू। थैंक यू सर।